Hello students, good morning. This is the video for narration and voice. There is always confusion between narration and voice because both the approaches are different. So here we are going to discuss the difference between narration and voice rules so that you'll be able to do comparison, right? As you know that there are two types of narration, direct narration and indirect narration. Similarly, there are two types of voice, active voice and passive voice. So the rules are different from for direct narration to indirect narration and vice versa, indirect narration to direct narration. Similarly, there are some rules for active voice to passive voice and passive to active. So let us see what is this. First of all, we should know the difference between between direct narration to indirect narration, right? Direct narration to indirect narration. Direct narration means when speakers, when we use speakers words and exact words, and indirect when we change into our words, that is called narration. And when to use narration in the do we use in our daily life? Yes, many a time we say that, oh, he was speaking that he will not come tomorrow, right? He said, I was the leader of the group, right? So many things we use in our daily life. Sometimes we use a speaker's word as it is, and sometimes we change his or her words into our words. That is called narration. Now, voice. So, voice is what? Voice is active voice and passive voice. That is different area. Here, active voice and passive. Active voice, that's a formula of active voice is subject, verb, object. Passive voice, object and subject, right? And here, important thing, helping verb. Then third form of main verb, and then by and then object. So when to use voice in a daily life? When we say that, no, that work is done by Mr. Ram, right? So that is when we highlight someone, and sometimes when we highlight the work. So here what is important? Here work is very important, right? Work is verb, and this part is very important in voice, whether work is done or not. And who here important is object becomes important, right? So when we do the exercise, you'll come to know. First is, that's a narration. You have to understand that's that is the narration. So here narration is what? Narration is, this is the narration, and direct narration and indirect narration, okay? And for direct narration, we can see the exam. Okay, please take care that in direct narration there are two clauses. One clause is called reporting speech, and one clause is remaining. This clause is called reported speech. Please take care. I'm repeating. Wait a minute. I'm repeating. See now. There there is very important part is that direct narration I'm talking about. An example is
of direct narration is he said, I write articles for college magazine. This is the example. Let me highlight. Yeah, yeah. Now you'll be able to understand. This is the example. He said, I write articles for college magazine. So there are two parts of direct speech. This part is called reporting speech, and this rest of the part is called reported speech. And one more thing is important, which is for a reporting speech, right? Reporting speech is that is usually do not change. Words do not change. And in reported speech, we change, we do changes according to this speech. I'm repeating. Usually, sometime reporting speech changes, but usually there is very few changes in reporting speech, means first part. But in second clause changes according to first clause, means according to verb in used in reporting speech. So then reported speech changes, right? And reported speech, direct reported speech, when we quote something means we are using speaker's words as it is. This is called direct narration. डायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन कहते हैं जब हम स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज़ यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं, एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं. और डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं या दो क्लॉज होते हैं. पहला, ही सेड, शी सेड, राम सेड टू मी, समथिंग लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. और रिपोर्टिंग स्पीच में कम चेंजेस आते हैं. फिर दूसरा पार्ट जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जिसमें हम कोट करके स्पीकर की बात को एज इट इज़ कोट करके लिखते हैं. उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. और उसमें चेंजेस आते हैं किसको देखकर? रिपोर्टिंग स्पीच को, पहले वाले क्लॉज को देखकर चेंज आते हैं. तो ये बहुत ध्यान से समझना. और उसी के कुछ रूल्स हैं जिसको जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं. तो एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही सेड आई राइट आर्टिकल्स फॉर कॉलेज मैगजीन, है ना. अब इसको कैसे चेंज करेंगे देखिए. ये जो चेंजेस है यहाँ पर, ये चेंजेस कैसे आएंगे, इसको हम रिपोर्टर्स के वर्ड्स में कैसे चेंज करते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो एक तो ये बात हुई कि किसने क्या कहा, वो ऐसा कह रहा था कि मैं नहीं आऊँगा कल, उसने कहा कि मैं लीडर हूँ, जो भी है, इस तरह के वर्ड्स को हम कैसे चेंज करते हैं. उसने कहा कि मैं लीडर हूँ, उसने कहा कि वो लीडर है ना. और वो कहता है कि यहाँ रोज़ बारिश होती है, तो वो कहता है कि नहीं लगाना, वो कहता है यहाँ रोज़ बारिश होती है. तो कहता है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, तो अभी भी होती होगी. तो वो कहता है यहाँ रोज़ बारिश होती है, कि बस लगा दिया आपने. तो जो चेंजेस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि किसने क्या कहा, उसको जब आप अपने शब्दों में कहते हो, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. एंड देर आर सम रूल्स फॉर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. दिस अप्रोच इज कॉल्ड नरेशन, क्योंकि आप नरेट कर रहे हो किसी की बात. फिर अब हम आते हैं वॉइस में, है ना. तो वॉइस क्या है? वॉइस में इम्पॉर्टेंट है, किसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, काम को कि पर्सन को, या वर एजेंट को. तो वॉइस, देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस एक्चुअली नॉट ओनली इनफॉर्मल, फॉर्मल भी होती है, पर स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. And structure of passive voice is, that is, this is the structure. Means सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करना है, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में, फिर बाय है. मैं अभी आपको लिख के बताती हूँ, है ना.
तो एग्जाम्पल क्या है, राम राइट्स आर्टिकल्स फॉर कॉलेज मैगजीन, सेम इसी के जैसा है ना। अब उसको चेंज कैसे करेंगे वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि नरेशन, व्हाट इज़ नरेशन, व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग, ही वॉज स्पीकिंग। अब जैसे ही वो स्पीकिंग आपने कहा या ही सेड आपने कहा, तो अब आप उसको स्पीकर के वर्ड्स को अपने वर्ड्स में बता दो, या एज इट इज़ यू कैन रिपीट द वर्ड्स ऑफ स्पीकर। तो ये दिस अप्रोच इज कॉल्ड नरेशन। एंड if we talk about voice, that is totally different. Voice means when you say that Ram said, sorry, here not saying or something, here Ram writes letters to the director. Ram writes articles for newspaper, right? So important thing is that what he does, right? Work is important than the agent or doer sometime. ये this approach is called voice. तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है, हमने कोई भी दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहले इसी स्लाइड में जो हमने एग्जाम्पल लिया है, नरेशन का बता रही हूँ मैं आपको। ही सेड आई राइट आर्टिकल्स फॉर कॉलेज मैगजीन, है ना। इसका कैसे होगा, ही सेड आई राइट आर्टिकल्स फॉर कॉलेज मैगजीन। ओके, ही सेड comma, then inverted comma, I write articles for college magazine। ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या आएंगे, देखो इसमें चेंजेस आएंगे जब हम चेंज, मैं इसमें अभी बता नहीं सकती फिर भी आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ये तो इट विल रिमेन एज इट इज, ही सेड, लेकिन पहला जो फर्स्ट चेंज है, दैट्स दैट कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, दैट इन यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिमूव्ड। पहला फर्स्ट चेंज। सेकेंड चेंज, दैट वी विल एड conjunction or connection, that is very common, that. And the moment we said he said that means we are going to change speaker's words into our words। जब हम अपने शब्दों में कहेंगे तो हम ही को ही यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, क्योंकि उसने कहा, ये मैंने नहीं कहा। तो ही सेड दैट, उसने कहा कि वो, है ना। अब सेड चूँकि पास्ट टेंस में है तो राइट भी पास्ट टेंस में आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा रोट, है ना। तो ही सेड दैट ही रोट आर्टिकल्स, बाकी पूरा जो सेंटेंस है विल बी एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही रोट आर्टिकल्स फॉर कॉलेज मैगजीन, राइट। तो ये कैसा हो जाएगा इसका आंसर, ही सेड दैट, he said that he wrote articles for college magazine, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें हमने देखा था यहाँ वॉइस में क्या एग्जाम्पल है, वो पैरेलल हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका एक्टिव वॉइस का पैसे बता रही हूँ। ये है एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। क्या राम राइट्स आर्टिकल्स फॉर कॉलेज मैगजीन, इसको क्या चेंज करेंगे हम, इसका चेंज आएगा, देखो, राम राइट्स आर्टिकल्स फॉर कॉलेज मैगजीन, है ना। इसमें चेंज, ये अलग अप्रोच है। राम राइट्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस है ये चेंज हो जाएगा।
तो कॉलेज मैगजीन से सेंटेंस स्टार्ट होगा। और इसके रूल हैं, कॉलेज मैगजीन, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वेट अ मिनट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे तो ये हो जाएगा आर्टिकल्स। अब ए कैपिटल होगा क्योंकि इस आर्टिकल्स बिगनिंग में, और आर्टिकल्स प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो पहले हम वर्ब, इसमें वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम वर्ब को देखेंगे कि वर्ब कौन से फॉर्म में है। तो वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है। तो हम अब यहाँ राइट्स इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आर्टिकल्स का नंबर प्लूरल है। तो हम यहाँ लिखेंगे आर्टिकल्स आर, है ना। और राइट का वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, राइट, रिटन बाय राम, राइट, और बाकी कॉलेज मैगजीन। तो उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल्स आर रिटन बाय राम फॉर कॉलेज मैगजीन। ऐसा हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल्स आर रिटन, आर रिटन बाय राम फॉर कॉलेज मैगजीन। ऐसा ये आंसर है, ठीक है। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। छोटा सा वीडियो है ये, लेकिन इसमें मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको दोनों बातें बता पाऊँ। अब देखिए क्या होता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हो या नरेशन हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस, राइट। और सेंटेंसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसके अकॉर्डिंग वॉइस भी चेंज होती है और नरेशन के सेंटेंसेस भी चेंज होते हैं। नॉर्मली सेंटेंसेस जो हमें इम्पॉर्टेंट है इसके लिए वो होते हैं एफर्मेशन या सिंपल सेंटेंसेस, फिर इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन में अलग अलग रूल्स लगते हैं, फिर इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये चार सेंटेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी स्लाइड है पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में आपको बताऊंगी। अभी इसको समझते हैं कि रूल्स क्या है। तो देखो, इसमें इतना क्लियरली नहीं बता पाई हूँ मैं आपको रूल्स अलग से इसमें दिखा देती हूँ। मैंने क्या बताया, फिर से इसको एक बार और देख लो। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, इम्परेटिव जिसमें हम एडवाइस या सजेशन देते हैं, वो सेंटेंस अलग होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी अलग होते हैं। पहले मैं चारों के आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। देखो क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जैसा सिंपल सेंटेंस होता है। तो उसमें अगर मैं नरेशन का एग्जांपल दूँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, राम सेड आई एम अ राइटर, ठीक है, ये अफर्मेटिव है। अगर ये होता राम सेड, और यहाँ ये नहीं होता, यहाँ होता राम सेड आई एम नॉट अ राइटर, तो ये नेगेटिव हो जाता, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर क्वेश्चन होता ये भी नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या होता, क्वेश्चन होता कि राम सेड एम आई अ राइटर, है ना। ये होता है क्वेश्चन वाला जिसको कहते हैं हम इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर ऐसा होता सेंटेंस कि राम सेड, राइट, अब यहाँ पे अंदर होता, मान लो ऐसा कि मैं इम्परेटिव बता रही हूँ, यहाँ पे अगर होता कि डोंट गेट पैनिक, डोंट गेट पैनिक, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता इम्परेटिव क्योंकि यहाँ पे सजेशन है ना। और अगर राम सेड
वॉट अ ब्यूटिफुल डे, ब्यूटिफुल डे। और ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, है ना। तो ये सेंटेंसेस के टाइप्स होता है। अब मैं यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। कैसे, मान लो अगर अभी हम नरेशन की बात कर रहे हैं, मान लो सेंटेंस होता राम सेड आई एम नॉट, ना सॉरी, आई एम अ राइटर। तो इसका आंसर बहुत छोटा सा सिंपल सा आंसर है, राम सेड, राम सेड, ये हटाना है कॉमा आपको, दैट लगाना है यहाँ पे, दैट। अब राम क्या हो गया, ये राम हो गया ही, और सेड है तो एम चेंज हो जाएगा, वॉज आ, और कॉपी हो जाएगा राइटर, ऐसा। नेगेटिव होता तो ही वॉज नॉट अ राइटर। अगर एम आई राइटर होता तो अब यहाँ चेंज आता है, इम्परेटिव सेंटेंस, राम सेड एम आई अ राइटर, तो सेड राम सेड, नहीं सॉरी, अब यहाँ राम सेड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा राम आज, राम आज इफ ही वॉज अ राइटर, क्योंकि इफ क्वेश्चन में लगाते हैं, और ही क्योंकि राम है वो, और वॉज, और क्वेश्चन, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर भी चेंज आएगा, सेड नहीं क्योंकि उसने उससे पूछा तो आस्क्ड हो जाएगा। फिर हमने लास्ट वाला देखा था कि राम सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो राम वंडर्ड, यहाँ वोकैबलरी आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, वंडर्ड द, राम वंडर्ड, राइट, ऐसे हो जाता है। ठीक है। अब वॉइस, वॉइस में क्या चेंजेस आते हैं, वॉइस मैंने बताया ना आपको कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था वॉइस में, कि वॉइस केसेस वाले सेंटेंसेस होते हैं कि राम राइट्स आर्टिकल्स फॉर कॉलेज मैगजीन, यहाँ पर कौन कर रहा है और क्या काम कर रहा है उसको वॉइस कहते हैं। तो यहाँ पर चेंज क्या आ जाएगा कि आर्टिकल्स आर रिटन बाय राम, आर्टिकल्स आर रिटन बाय राम फॉर कॉलेज मैगजीन, है ना। तो इसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव होता तो आर्टिकल्स आर नॉट रिटन बाय राम फॉर कॉलेज मैगजीन। लेकिन इसमें क्या कैसे होता है वॉइस में, कि मान लो ऐसा होता कि वॉइस में होता कि क्लोज द डोर, तो लेट द डोर बी क्लोज्ड, इसके रूल्स अलग है। क्वेश्चन होता अगर, तो इसके रूल्स अलग हैं वॉइस के, वॉइस में क्वेश्चन होता तो इसके रूल्स अलग होते हैं। ये मैं सारा इतना सारा नहीं बता पाऊँगी अभी आपको, मैं चेंजेस के लिए यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि एक्टिव वॉइस के से पैसिव वॉइस के क्या रूल्स हैं, पहले इसको समझ लो। एक्टिव से पैसिव के रूल हैं, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव से जब पैसिव में चेंज होता है तो याद रखो सबसे पहला चेंज कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में प्लेस चेंज हो जाती है ना। ये क्या चेंज आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में प्लेस चेंज होती है। फिर हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लगाते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, और यहाँ बाय लगा देते हैं। बस ये रूल्स आपको याद रखना है, यही थंब रूल्स है। ये किसके रूल्स है, ये वॉइस के रूल्स है। ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में पहला चेंज कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना, पहला चेंज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। दूसरा चेंज हेल्पिंग वर्ब, है ना। तीसरा चेंज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। चौथा चेंज बाय, और पांचवा तो हमने वही किया, लेकिन पांचवा चेंज क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट अगर नेम नहीं लिखा है, नाम नहीं है, तो फिर यहाँ पर अगर सब्जेक्ट
प्रोनाउन है तो यहाँ ये फॉर्म चेंज होता है। कैसे? आई है तो यहाँ मी हो जाएगा, यहाँ पर वी है तो यहाँ अस हो जाएगा। यू तो कभी चेंज ही नहीं, यहाँ पर भी यू रहता है, यहाँ पर भी यू रहता है। लेकिन ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा। इट भी चेंज नहीं होता, इट का इट ही रहता है। और दे है तो देम हो जाएगा। ये नियम आपको, ये 5 रूल्स आपको वॉइस के लिए, पैसिव वॉइस के लिए याद करना है। अब हम आते हैं नरेशन। नरेशन में क्या चेंजेस आते हैं, इससे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो याद रखो, सबसे पहला चेंज होता है वो होता है रिमूवल, है ना, रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, पंक्चुएशंस कह सकते हैं एज अ होल हम उसको, पंक्चुएशंस, है ना, पंक्चुएशंस, ये याद रखना, जिसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इसको हटाते हैं। दूसरा चेंज आता है इसमें बहुत कॉमन, कि हम कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं, दैट लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 2 कंजंक्शंस यूज़ होते हैं, इफ़ और वेदर, है ना। ये कंजंक्शन, ये दूसरा रूल है। पहला रूल क्या है कि ये रिमूवल ऑफ पंक्चुएशन। नंबर 2, ये हम कंजंक्शन हटाते लगाते हैं। तीसरा रूल इसमें है कि आपको वर्ब को चेंज करना होता है। जैसे ही सेड, तो अगर सेड है तो वर्ब के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस में अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर भी रिपोर्टिंग स्पीच के जो जैसा उसमें वर्ब यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग अंदर चेंज करना पड़ता है प्रोनाउन। तो मैं इसमें अभी आपको बताती हूँ कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा रिमूव करते हैं पहला। दूसरा कंजंक्शन इफ़ या वेदर या कंजंक्शन दैट सबसे कॉमन है, दैट इफ़ या वेदर लगाते हैं। तीसरा इसमें वर्ब चेंज होता है और चौथा इसमें प्रोनाउन चेंज होता है। ये रूल्स हैं नरेशन के। तो हो सकता है इस बार मुझे ऐसा खुद भी लग रहा है कि आपको बहुत क्लैरिटी ना आई हो। उसका रीज़न है क्योंकि ये कंपैरेटिव स्टडी है और फ्रीक्वेंटली मैं ये भी बता रही हूँ व्हाट्स द अप्रोचेज ऑफ नरेशन एंड वॉइस। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन अगर आप सेंटेंसेस मुझसे डिस्कस करोगे तो आई वुड बी हैप्पी। लेकिन हाँ, बिफोर concluding the session, I would like to tell you that again I had started this session with the comparative study of voice in narration। तो ये समझ लो अच्छे से कि for voice you just have to change the active to passive and there are 5 rules। पहला रूल है सब्जेक्ट एंड वर्ब का प्लेस चेंज करना। नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना, ये मैं वॉइस का बता रही हूँ। नंबर 3, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हमेशा वॉइस में, पैसिव वॉइस में। फोर्थ इज़ बाय लगाना है। और फिफ्थ रूल है कि अगर सब्जेक्ट में नाम है तो कोई चेंज नहीं आएगा, नाम नहीं है तो फिर चेंज आता है, आई का मी हो जाता है, जो मैंने अभी आपको पूरा बताया। ये जो अप्रोच है, ये रूल्स हैं, 5 थंब रूल्स हैं, ये वॉइस के लिए है। अगर आप नरेशन चेंज करोगे तो सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट चेंज करने में आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाना है। उसके बाद आपको दैट लगाना है। दैट बहुत कॉमन कंजंक्शन है, लेकिन दैट के अलावा इफ़ और वेदर भी लगाए जाते हैं, जो क्वेश्चन जब हम बनाते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में इफ़ और वेदर लगाते हैं। उसके बाद तीसरा चेंज नरेशन में जो आता है वो वर्ब का आता है। अगर ही सेड है और इधर आई एम है तो सेड पास्ट टेंस है तो एम का भी पास्ट टेंस वॉज हो जाएगा। तो इसमें वर्ब में चेंज आता है और साथ में प्रोनाउन में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। आई का जनरली आई का चेंज होके हो जाता है ही, है ना, ही या शी हो जाता है। और अगर माए लिखा है, अब मान लो कि ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर नेम, तो ही इंक्वायर्ड व्हाट वाज माय नेम, है ना। योर का माय, तो इसमें प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस था दोनों अप्रोचेस में, कि एक कब होता है कि उसने बताया, मैंने कहा, ये सब नरेशन है। व्हेन यू नरेट सम
समथिंग, है ना। और वॉइस जो है वो बिल्कुल अलग अप्रोच है, जिसमें कहते हैं राम सेड, सॉरी, राम कोई काम करना दिखाते हैं इसमें, कि जैसे ही वर्क्स फॉर अ कंपनी, राइट, ही राइट्स आर्टिकल्स टू कॉलेज में फॉर कॉलेज मैगजीन। तो ये इस तरह के वर्क में चेंज होता है। तो इसमें मेन है चेंजेस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने ट्राई किया है डिफरेंस बताने का। फिर भी ये मेरा नंबर है, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी sentences, right? This is my number. Here you can leave your message, right? Thank you so much.